नमस्ते, मेरा नाम है सृष्टि शर्मा और मैं हूं फाउंडर शक्ति वेरेबल्स की। शक्ति वेरेबल्स is India's first street smart product startup that creates technical and innovative solutions in the category of personal safety and gender defense. And the first problem that we are trying to solve in the category of personal safety is women's safety. 2012 द निर्भया दिल्ली रेप केस, 2023 द मणिपुर रेप केस और हाल ही में कोलकाता में क्या we all are aware of. It's very unfortunate, but a crime like rape gets committed every 16 minutes. And you know what's even worse? 91% of such cases are not even officially reported. Women safety को लेकर आज market में काफी solutions हैं. There are pepper sprays and a lot of SOS application. But with due respect, there are some loopholes in the current solutions regarding women's safety or personal defense. Just to imagine, अगर मेरे बैग में pepper spray है, and if there's a attack happening on me right now, I probably don't get the time to go to my bag, unzip it, take a pepper spray out and use it. और इवन इन केस ऑफ एन SOS ऐप, अगर मेरा लोकेशन पुलिस या किसी को भी जाता है जो प्रोबेबली आके मेरी मदद कर सकता है, विद इन द टाइम ऑफ कम्यूशन द क्राइम यूजुअली गेट्स कमिटेड. सो द सॉल्यूशंस दैट आर करंटली अवेलेबल इन द मार्केट आर टाइम टेकिंग एंड लेस फीजिबल. और इसी समस्या को जड़ से समझने के बाद हमने आविष्कार किया शक्ति का. ये इंडिया का नहीं बल्कि वर्ल्ड का पहला विमेन क्राइम प्रिवेंटिव वेरेबल है. आप इस वेरेबल को एक नॉर्मल घड़ी की तरह अपने रिस्ट पे बांध सकते हैं. And any woman, in our case, if she is traveling alone or she feels that her safety can be compromised, there's a button attached here. When you press this button, it activates 3 features. 1, एक बहुत जोर से alarming sound बजता है that is good enough to make the other people aware that somebody needs some help. Second, and the major USP is the electrocution feature that we have. Once press this button, some EMV waves get generated on this dial. So if I am wearing it and मान लीजिए somebody is trying to harm or attack on me और उनका हाथ कहीं भी इस wearable पे dial पे लगा, it electrocutes the other person by emitting square electrical waves, which is good enough to lower down the attacker's nervous system for 4 to 5 minutes in a non-deadly way. घबराइए मत, इससे किसी की डेथ नहीं होती, कोई हेल्थ हजार्ड नहीं होता. आप टेम्पररी किसी को स्टन कर रहे हैं, इमरजेंसी में 5-7 मिनट खरीद के वहां से भागने के लिए. यू कैन रन, एस्केप और कॉल फॉर हेल्प. एंड साइमल्टेनियसली आपका लाइव लोकेशन ऑटोमेटिकली नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एंड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज में चला जाता है. It's a simple device that can be charged like a phone. If you charge it for 60 minutes, it runs up to 70 hours. At once, it has the capacity to electrocute 40 people. Usually, group में अगर लोग आते हैं crime commit करने के लिए, it can cater to that as well. And the market price for this is 2,500, and we are working rigorously to get the price down. To the government, because we expect bulk orders, the pricing can be reduced to further 1,800. We can also raise CSR fund and distribute it free of cost to the women who cannot afford it at a price. Having said that, although we are trying to solve a social problem, but we don't compromise on the profit margins. Per product, the gross margins are around 52%, while the net margins around 37 to 38%. That at least keeps the sustainability going. Right now, as I speak to you, we have already applied for design and utility patent, and I'm happy to share that we received 2 design patents, 1 utility patent, and we're expecting 1 more patent. So that's a brief on the first product that we've created. Coming, as we can see on the slide, these are the further designs that we are trying to achieve in. आप वहाँ देखेंगे ऊपर वाले मॉडल में, that is the product journey that we have had. पहले ट्रांसफॉर्मर बड़ा था, उसको इलेक्ट्रिक्यूट करना पड़ा, then there were different variables and variants that we had to create in, and now this is what the technology ready product actually looks like. Shakti version 2.0 is the upgraded tech that we are working on. आज एक women की location, police station and friends and family को जाती है. In coming future, we are building a tech जहाँ पे even if there are strangers within a certain radius of say 500 meters to 1 kilometers, if they have Shakti app installed, उनको SOS message आ सकते हैं, and if they accept it, they can actually immediately come on spot to help. That's the futuristic community that we are already working on. So we have 3 simple business strategies: D2C, B2B and B2G. Under D2C category, we intend to, of course, sell this on Amazon, Flipkart, on marketplaces. Under B2B, we intend to collaborate with a lot of schools, colleges, corporates under their POSH Act, where it's mandatory for them to do something to ensure female safety of the employees. And under B2G, we are very actively pitching to a lot of state and central government. And the good part is that we've received some great traction from the government. We already have soft commitment from Central Women and Child Development Ministry, and they've agreed to endorse and look at the large-scale distribution
distribution of this product into different states under a scheme called as Nirbhaya Fund. I personally got the opportunity to pitch this technology to the Chief Minister in Gujarat, Chief Minister in Delhi, Governor of Bihar and Governor of Uttar Pradesh, along with the respected Prime Minister of the state. And there are some other states like Chandigarh, Himachal Pradesh, Haryana, Manipur, जहाँ पे बात already चल रही है. Product line in making. So Lions, as an entrepreneur, being extremely honest, हमने शुरुआत 2 साल पहले ये सोच के की थी कि women safety के लिए कुछ better बनाएंगे. But in this process, we realized that we've been able to crack a technology that has the power to electrocute somebody in a non-deadly way, and more importantly, avoid self-electrocution. Now that opens a lot of horizons and doors for us. क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को आज तक नहीं पता किसे करंट लगाना और किसे नहीं कराना. But in this process, because we were able to crack this tech, we would want to open different doors. हम women safety में wearable के साथ एक rings भी लाना चाह रहे हैं, something which is more feasible and give customers different choices to kind of make. Yesterday we had the second meeting with DRDO, and we are also trying to introduce this technology in shoe format where this can be used as a non-lethal weapon on the borders or at least by the CRPF jawans that can actually help them in different scenarios. And तीसरा SKU जो हमारा है वो बेटन्स हैं. आज आप देखते होंगे पुलिस कन्वेंशनल लकड़ी की लाठी यूज करती है. सो ये प्रोडक्ट और सेम टेक्नोलॉजी बेटन फॉर्मेट में क्राउड कंट्रोलिंग और काफी जगह हेल्प करता है. सो दैट ओपन्स अ लॉट ऑफ होराइजन्स. ये सिर्फ 4 SKUs हमारी सस्टेनेबिलिटी और कंपनी को डिफाइन नहीं करता. दिस टेक्नोलॉजी कैन बी लेवरेज इनटू डिफरेंट फॉर्म फैक्टर्स एज वेल. अगर हम सिर्फ एक डिटैचेबल कोई बड़ी कंपनी जैसे प्यूमा या रीबॉक को दे, देन दे कैन कम अप विद देयर ओन women safety wearable category. So that opens a lot of horizons, and that is where we intend to reach. Very quickly on the team. My name is Srishti Sharma. I'm the founder here. I've been a serial entrepreneur. This is my 3rd startup. So I'm somebody who somehow has some experience of seeing this entire journey of going from an idea to raising investments and giving exit to investors. That's what I've done in the past. So in the last 1.5 years, we've spoken to more than 3,500 women. Out of them, 78% of them have said yes to a product like this, which validates the market need. Right now, the technology is properly built. So we are at TRL 9, I would say. Government initiation is something that I briefly touched on. We also received some grants under Startup India Seed Fund and Tide 2.0, somewhere around 25 to 26 lakh rupees as grants. Last year, when we were at TRL 2, an initial pre-seed investment was done by Mr. Ikant Pitti, who's the founder of Ease My Trip, and we were given a valuation of around 8.3 CR last year. Besides that, we've also done paid pilots that got us a revenue of 12 lakh rupees. And we have right now LOIs of 5,500 units with an order value of roughly 1.35 CR. And current ask, we are actually looking to raise 2.5 CR in exchange of 10% of the equity, asking for a valuation of 25 CR. 2.5 CR में से 50 lakhs already एक investor से committed है, and they have validated the valuation, and we are keeping the remaining round open for 2 CR. The closing statement is Lions कौन चुनना चाहेगा हमारे साथ इस मुहिम में, where we feel कि इंडिया की हर women already शक्ति है. It's just time for them to realize what their power is and emerge stronger than ever. Thank you so much, and I'm open to questions. सृष्टि जी, सबसे पहले तो आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है ये लायंस डेन के शो पे. आपने जो ये बात छेड़ी है वो एकदम इमोशनल बात है, और आप ही नहीं, हम लायंस ही नहीं, पूरा इंडिया ही नहीं, भारत ही नहीं, पर पूरा वर्ल्ड यही चीज़ से अलाइंड है कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर होना चाहिए, और ऐसे क्राइम्स, ऐसी सब बातें बंद होनी चाहिए. और हम लोग सब आपको एक बार खड़े होके ये चीज़ के ऊपर आपको स्टैंड करना चाहते हैं इसके ऊपर, और आपको नमस्कार करना चाहते हैं. I am very grateful to be here, and thank you so much. थैंक यू. जी. अभी क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं. मुझे ये पूछना है कि आपका जो ये डिवाइस है, डज इट रिक्वायर एनी सर्टिफिकेशंस और एनीथिंग? Sure, sir. So, ऐसे products Indian Arms Act के अंडर आते हैं, where there's a category which is called as self-defense category. So it's clearly stated as per the Indian Arms Act that as long as the electrical current emission is less than 10 milliampere, we are legally allowed to create and manufacture and sell these products. हमारे product में 0.7 milliampere है, जो allowed parameter से काफ़ी कम है. Besides that, sir, इसमें ROHS and BIS certification चाहिए होता है, जो हमें मिल चुका है. And the reason we are getting the government to back this up is कि नया product innovation है, तो government back करेगी तो credibility और बढ़ेगी. तो legally we are allowed to produce and sell this, sir. Right. Very, very inspiring to see a woman entrepreneur solving this problem. I do have a question on the reverse application of it. What if the perpetrator uses this in a wrong way, or even if someone else uses it for, for doing wrong things? मिसयूज को मैम हम 2 कैटेगरी में देखते हैं. वन इज सेल्फ इलेक्ट्रिक्यूशन. एज अ विमेन अगर आप खुद को इलेक्ट्रिक्यूट कर लो या आप अपने लव्ड वंस को दे पाओ, हाउ डू वी प्रिवेंट दैट?
सो टू अवॉइड सेल्फ इलेक्ट्रिक्यूशन मैम, इसमें जो भी विमेन है या वेरर है उनके वाइटल्स मेजर होते हैं, लाइक स्किन कंडक्टेंस लेवल एंड लाइव HRV रेट। बिसाइड्स दैट, क्योंकि ये वेरेबल नीचे से आपकी बॉडी के टच में रहता है, यहाँ पे पोगो टर्मिनल में रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो योर बॉडी डजंट एक्ट एज अ कंडक्टर, इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। तो अगर इमरजेंसी में आप किसी को लगा रहे हो और उसने हाथ मरोड़ के आपको ही वापस लगा दे, यू विल नॉट गेट इलेक्ट्रिक्यूटेड। If I'm a woman, I'm wearing this. What precaution do you take कि I don't hurt my loved ones? तो ये बटन ऐसे लगा हुआ है मैम कि गलती से प्रेस नहीं होता, इट हैज टू बी पर्पसली प्रेस्ड बाय गिविंग अ सर्टेन प्रेशर, एंड आफ्टर दैट जैसे ही प्रेस होता है ना एक अलार्मिंग साउंड आता है, तो गलती से अगर उतना प्रेशर से बटन ऑन हो भी गया, इतना जोर से अलार्म साउंड आएगा दैट यू विल बी कॉशियस दैट ओके अब मुझे इसको ऑफ करना है। दैट इज हाउ वी अवॉइड द मिसयूज इन फर्स्ट केस। सेकंड केस मैम, जैसे आप कह रहे हो अब ये मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी खरीद के चोरी कर ले या कुछ भी कर ले, हाउ डू वी केटर टू दैट? इसमें मैम इवन इफ दिस विल बी फ्रीली अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart, इट डज नॉट गेट एक्टिवेटेड अंटिल अनलेस कोई भी यूजर अपने फोन में एक ऐप इंस्टॉल करके फर्स्ट स्टेप एक लाइव पिक्चर क्लिक होती है, तो आप कोई किसी और का फोटो नहीं दिखा सकते। दैट्स हाउ द एल्गोरिथम इज प्लान्ड। सेकंड मैम, आधार लिंक OTP इस पे लिंक्ड होता है, तो जो भी यूजर है उनका आधार लिंक जो नंबर होगा उसका OTP जब इसमें एंटर होगा, दैट इज द सेकंड स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन, द टेक्नोलॉजी दैट Paytm यूजेस। तो आप ऐप तो डाउनलोड कर सकते हो, बट जब तक बैंक वेरिफिकेशन नहीं होता यू आर नॉट अलाउड टू यूज इट। थर्ड एंड मोर इंपॉर्टेंटली मैम, ये 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन के बाद हर डिवाइस की एक यूनिक आईडी है, तो हर डिवाइस चाहे हम 1 लाख यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट करें, कितना भी करें, हर डिवाइस की यूनिक आईडी के पास हमारे CRM पे ये प्रोसेस है जहाँ पे कौन सा डिवाइस कहाँ पे और किस यूजर ने यूज किया, दैट डेटा इज एक्चुअली गेटिंग स्टोर्ड। सो दैट इज हाउ वी मेक श्योर दैट बाय दीज 3-4 सिक्योरिटी लेवल्स इट डजंट गो इनटू रॉन्ग हैंड्स। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, अगर कोई चोर इसको लेगा और उसे पता है मेरी लोकेशन पुलिस को जाएगी, तो कोई क्यों ही इसको यूज करेगा? दैट इज अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स कि आई डोंट वांट टू बी कॉट, सो आई विल नॉट बी यूजिंग इट for that purpose. ये लोकेशन जो ट्रैक करते हैं, आई थिंक इट इज बैंड बाय द गवर्नमेंट ना, कि लोकेशन हम लोग ट्रैक नहीं कर सकते किसी का। श्योर सर, सो कंसेंट बेस्ड ट्रैकिंग अलाउड है सर। जैसे हम फोन पे व्हाट्सएप पे किसी को अपनी लास्ट लोकेशन या लाइव लोकेशन भेजते हैं, उसी पैरामीटर के अंदर ऑन पर्पस ही अलाउड है, और वो करंट लास्ट लोकेशन नहीं होता सर, वो 8 घंटे तक ट्रैक रहता है। इमरजेंसी में विमेन इज चेंजिंग प्लेस है, वो कहीं चली जाती है, तो 8 घंटे तक हमारे पास ट्रैकिंग का वी हैव द प्रोविजन। राइट। when this product starts getting known to the people, gets advertised, so people जो गलत इंटेंशन से आते हैं, जो रेप इंटेंशन, उनको will it not become कि इन्होंने ये पहन रखा है एंड उसका कुछ कि भाई मैं प्लास्टिक ग्लव्स लेके जाऊँ ताकि मुझे शॉक नहीं लगे, तो मेरा एक्शन ही वैसा हो कि मैं उसको पहले उसको न्यूट्रलाइज करूँ? What is about this? Absolutely sir. So ये जो इलेक्ट्रिक्यूशन फीचर है, 1 लेयर ऑफ क्लोथिंग तक को एलिमिनेट कर सकता है। तो अगर किसी ने इंसुलेटर ना पहना हो बट एक लेवल ऑफ क्लोथिंग पहनी हो ग्लव्स के लिए, तो इलेक्ट्रिक करंट फिर भी निकलेगा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, अगर कोई इसको निकालने आएगा और आपने बटन ऑलरेडी प्रेस किया हुआ है, इलेक्ट्रिक्यूट हो जाएगा। हाँ जी, वो पहले इलेक्ट्रिक्यूट हो जाएगा। एंड दूसरा सिनेरियो इसमें कि सब मेजर केसेस में क्या होता है, सामने वाले, मैं साइकोपैथ्स की बात नहीं करी, मेजरली अगर पता चल जाता ना कि उसके पास कुछ है जिससे मुझे प्रॉब्लम है, बंदा पहले ही चला जाता है। द सेम साइकोलॉजी, अगर पुलिस पेट्रोलिंग करी है रोड पे तो छेड़छाड़ नहीं होती, बट 1-2% साइकोपैथ्स तो सर दे कैन डू एनीथिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्वाइट रीजनेबल। Quite reasonable, right? मेरा एक और सवाल, अभी कोई जैप तो अपने आप को कराने के लिए तैयार नहीं होगा, डेमो के लिए पूछ रही थी, बट कैन यू एक्टिवेट द अलार्म प्लीज? Absolutely ma'am, I have charged this. This is the zapper. Would you be able to activate the alarm? बट ये बहुत धीरे डेसिबल में आ रहा है। If I can come there. या प्लीज कम। बस जैप मत करना, हमने आपको कुछ नहीं किया है। ये जो बहुत धीरे से आपको अलार्म सुनाई दे रहा है ना, ये बहुत एम्पलीफाई हो जाएगा। ओके, बाद में हो जाएगा। हाँ सर, वो तो एक मिनट, ये देख सकता हूँ। ये फाइनल है? ये फाइनल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है। ओके, ये तो प्रोटोटाइप होगा ना? हाँ सर, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है। ये प्रोडक्शन जब मशीन बेस निकलता है, सो इट इज मच मोर स्लीकर। आपको ये नहीं लगता कि ये वाले मॉडल्स इससे ज्यादा बेटर थे, ये लेस क्लमजी हैं, मोर वेयरेबल हैं? दिस साइज विल बी रिड्यूस्ड बाय 60% वंस वी गेट इनटू प्रोडक्शन। सो मैं चलिए। आपकी जो डिवाइस है, इसके जो यूनिक फीचर्स हैं और इसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन अभी जो इसका डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा उसको रेक्टिफाई, उसको बढ़िया करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये बहुत बड़ी है। वुमेन्स के लिए डिज़ाइन, लुक, फील,
एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, वो इसके साथ ही है कि यदि कोई आप बहुत ही बड़ी बल्कि चीज़ उनको पहनने के लिए बोलोगे तो दे मे नॉट लाइक टू वेयर इट. सो वहाँ पे आप क्या काम कर रहे हो और क्या आपका थॉट चल रहा है उसको लेकर? Absolutely, sir. As you very rightly said, the only idea to showcase the initial prototypes were कि हमने वो design और size भी achieve किया था. The reason we shifted from there to here is to be more clear and confident on the utility. क्योंकि अगर हम ऐसा डिवाइस बना दें जो इमरजेंसी में सॉल्व नहीं कर पा रहा है, चाहे वो कितना भी सुंदर लगे, इट्स ऑफ नो यूज. सो राइट नाउ सर एंड मैम वी आर एट अ प्लेस जहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड यूटिलिटी इज प्रीटी मच कॉम्पैक्ट. एज ए R&D कंपनी आवर वर्क इज डन. नाउ वी आर गेटिंग इन टच विद द प्रोडक्शन पीपल एंड प्रोडक्शन में हमारे जो प्रोडक्शन पार्टनर्स हैं वो इस साइज को विदाउट कॉम्प्रोमाइज ऑन द यूटिलिटी 60% कम कर रहे हैं. तो अगर इमेजिन करना हो, ये सिलिकॉन बैंडिंग इज द एग्जैक्ट वेरेबल दैट वील हैव इन द नेक्स्ट 3 to 4 weeks. ये कैट डिजाइन हमारी रियल एक्चुअल इमेजेस है. सो दिस इज व्हाट विल बी लॉन्च्ड इन द मार्केट. One more thing, apart from this, are you creating some utility features in this? Like it can be weird like a watch or something additional, which is not just, it can become a fashion statement. Idea on day one was to create a smartwatch with a safety feature. We tried a lot but that didn't happen क्योंकि यूटिलिटी पर्सपेक्टिव के हिसाब से सर जब स्मार्ट वॉच का सर्किट और इलेक्ट्रिक्यूशन का सर्किट साथ आता तो वो काम नहीं करते. इसलिए इसको स्मार्ट वॉच कन्वर्ट करना एज इफ हमारा प्लान नहीं है. बट एज यू वेरी राइटली सेड, इसमें टाइम डिस्प्ले आ सकता है जो इसमें भी है. हम स्टेप काउंट कर सकते हैं, हम इसको हार्ट बीट लेवल के लिए या बाकी जो स्मार्ट हेल्थ वॉचेस होती है वो पैरामीटर्स इसमें डाल सकते हैं. बट पर्पसली सर अभी एटलीस्ट फॉर द 6 to 8 months वी वांट टू एस्टैब्लिश द USP दैट वी हैव बिकॉज नोबडी एल्स इज डूइंग इट. मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाह रहा था आपका श्रुति कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो. और जैसे आपने बोला कि मैंने मल्टीपल बिजनेसेस किए हैं, तो जस्ट वांटेड टू नो व्हाट आर दोज बिजनेसेस, आर दे स्टिल रनिंग? Sir, I've done my schooling from Delhi Public School, Vasant Kunj. After that, I did my economics honors from Delhi University. उसके बाद MBA की जगह I got into actuarial science and I've cleared few paper of actuarial science from the Indian and from the UK society. I started as a social entrepreneur at the age of 17-18. First project that I took full time as a co-founder was a healthcare company named Human Science. I was a 10% equity holder there. I raised investment from Baidyanath. I was managing the sales and marketing. वो कोविड में लॉन्च होना था सर, बट वो कोविड में लॉन्च नहीं हो पाए बिकॉज इट वॉज अ कंप्लीट ऑफलाइन मॉडल. सो आई हैड टू टेक एन एग्जिट. आई अर्न सम मनी आउट ऑफ इट. आफ्टर दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ अ फूड टेक प्लेटफॉर्म नेम Binge Digital. In 1.5 years, we sold that to Dine Out. So that was an acquisition, acqui-hiring that had happened. Then full time जो first startup मैंने किया था वो मेरा एक gaming esports platform था. जो last to last year actually when we were ideating Shakti, I had to drop out sir because as a founder आप 2 boats में सवार नहीं हो सकते. You have to justify being at one place. And 2.5 साल से हम लोग October 2022 से till here full time into Shakti. पूरा इस पे ही आप दे रहे हैं जी समय. सर. और आपके कोई फाउंडर भी हैं? इज देयर एनी नहीं सर, आई एम अ सोलो फाउंडर. ये तो इनोवेशन का प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, आपका टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है, तो कैसे, हाउ विल यू सस्टेन? बिकॉज आपने बोला कि आपका कोई CTO भी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी आपके पास में ऐसा कोई जना नहीं है जो कि टेक्नोलॉजी का कोर पार्ट हो कंपनी का टेक्नोलॉजी बनाने के लिए. सर को फाउंडर नहीं है बट CTO है. अभिषेक शर्मा जो है ही इज द CTO. एज आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड एज अ टेक कंपनी अगर हमारी टेक टीम या R&D टीम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसका कोई रूट या बेस ही नहीं है. सो दैट्स द रीजन दैट वी नीड टू मेक श्योर वेयर अभिषेक एंड अदर 6 पीपल दैट वी हैव दे स्टे इन द कंपनी. और सबको इक्विटी कमिटेड है सर. किसी को 0.25 है, किसी को 0.5% है. एंड दैट कन्वर्जन इज समथिंग विच इज हैपनिंग एंड दैट इज हाउ वी मेक श्योर सर कि जो पेटेंट फाइलिंग हो रही है कंपनी के नाम पे ही है. So I am an entrepreneur myself and I really like the fact that a woman is standing here in front of me जो एक औरत की हमारी जो सोसाइटी में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रही है, कर लिया है ऑलमोस्ट. सो आई एम इंटरेस्टेड. आप मेरे को बस नेक्स्ट 3 साल का अपना पोटेंशियल रेवेन्यू बता दीजिए, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो होगा. Sure, ma'am. So currently, if I talk about the numbers, तो 5500 यूनिट्स के LOI हैं जिनको ऑर्डर वैल्यू अराउंड 1.35 CR के पास है. उसके अलावा 4 स्टेट से हम लोग को LOI है विच इज गुजरात, UP, बिहार एंड देन तमिलनाडु. पर स्टेट मिनिमम ऑर्डर 10,000 यूनिट्स का मिलता है. मैं हाइपोथेटिकली अगर आज से कोई मार्केटिंग ना करूं और 4 में से सिर्फ एक स्टेट्स को लूं 10,000 यूनिट प्लस 5500 यूनिट तो हमारी ऑर्डर वैल्यू आज के टाइम 11.25 CR के ऊपर है. बिसाइड्स दैट मैम आने वाले 3 साल में देयर आर 2 वेरी क्लियर फोकस दैट वी वांट टू गेट दिस कंपनी इनटू. One is maximize the distribution of this product and ring and be say an established or a known brand in the category of women safety. And साथ हम लोग R&D करके बाकी SKU units को लाए so that it opens the channel for the Indian Army and for the CRPF jawans and the products that we are trying to build in for them. So estimated numbers that or the orders, the number of pieces that we would want to cater in the next 3 years roughly is around 5 to 5.5 lakhs is what we are looking at.
कीपिंग इन माइंड द गवर्नमेंट ऑल्सो स्टेप इन ऑफ कोर्स B2B और D2C में, क्योंकि कंपटीशन नहीं है, हम जितना जल्दी मार्केट को कैप्चर करेंगे मैम, इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। बिल्कुल सही। आपने बताया कि 2.5 करोड़ आप रेज करना चाहती जी हैं, सर। यू नो, टोटली, और उसमें से 50 हो गया है या 50 बाकी है? सर 50 का कमिटमेंट आ गया। मतलब आपने बोला था कि 2.5 के लिए आप 10% देना चाहती हैं, मतलब 2 के लिए 8%। दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग। So I can give my offer. I can do the entire round of 2 crore rupees for 15% equity. थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर। 15%। ये जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ये सिर्फ इंडियन मार्केट की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी देशों में ये प्रॉब्लम है और उससे इंटरनेशनलाइजेशन भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन लेकिन आप ऑफर दो ना। आपने 15% बोल दिया। मेरी एक्चुअली आपसे आज थी 2 करोड़ के लिए 25% ऑफ इक्विटी। जय भाई, देखते हैं, लेट एवरीबडी एल्स गिव देयर ऑफर। I think you're a great entrepreneur, great vision, great product, everything. Any offer that I give would be lesser than Gauravji's offer here. So for that reason, I'd like to step out. But like, I'm so proud of you to be on this mission. थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल है मैम, उसके बाद बोल दो जय भाई। सर ओके, हम लोग शायद ये All डिसाइड the 4 we can come. Come मतलब in. पूनम जी can also come in that. at 15% equity which Gaurav ji has देखिए, given. मैं ऐसा है कि मतलब 2 करोड़ ही आएगा। मैं आपको बोलूं, मैं ये पूरी की पूरी चीज टेक्नोलॉजी पे बैठ कर रहा हूँ। मतलब मैं कॉज को रिस्पेक्ट करता हूँ, आई एम फुल्ली रिस्पेक्ट कॉज, Absolutely, बट मैं जो आपका टेक्नोलॉजी सॉलिडिटी है ना, मतलब कि भाई कैसे हम इसकी कंटिन्यूटी, कि टेक्नोलॉजी की कंटिन्यूटी कैसे रह सके और हम इसको कैसे डिफरेंट एरियाज में और ज्यादा यूज कर सके, तो वो अपन करेंगे, मतलब विल डू दैट। एब्सोल्युटली सर, श्योर। और दूसरा क्या है कि जैसे गुजरात गवर्नमेंट है, सो आई हैव वेरी गुड कनेक्शंस, सिर्फ गुजरात गवर्नमेंट ही नहीं पर और भी जगह पे, सो वी कैन ऑलवेज हेल्प विथ ऑल दिस प्रॉब्लम्स। अभी तो पूरे देश में लाडली बेटी चल रहा है, लाडली बेटी में इससे बेहतर गिफ्ट क्या हो सकता है? तो अगर आपको एक्सेप्टेबल है तो हम चारों आपको 2 करोड़ दे रहे हैं 15% इक्विटी के लिए। मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है मैम, 2.5 CR में से जो 50 लाख कमिटेड है, वो 25 की वैल्यूएशन पे ऑलरेडी है। अगर वो 50 भी हम ही दे दे तो इफ वी कैन डू इट 2.5 फॉर 12%, आई विल नॉट नेगोशिएट मच। नहीं, वो Well, आप तो नहीं 3% ईच है सर। वो जो आपका आउटसाइड इन्वेस्टर है वो स्ट्रेटेजिक नहीं, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है, इज ही अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर? यस। सो यूड लाइक टू कीप हिम? अगेन मैम, I'll go back and I'll keep the conversation open. मैं सृष्टि, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जी। आप वो चूज कर लो। सोच यदि लो। आपको चाहिए कि नहीं भाई हम आए, देखिए उसका एक अलग वैल्यू है। Absolutely, sir. I understand. आप नहीं भी बोलेंगे सर, मुझे पता है। 15% equity is not a problem. I'm not greedy for equity कि नहीं 5-10%. 10% is what I wanted to share. 15 is what I'm okay to share. हम amount थोड़ा increase कर सकते हैं if everybody is okay with it. 2.5 की जगह 2.75 अगर हम कर पाए, हमारा सारा फंड रिक्वायरमेंट सॉल्व हो जाएगा सर एंड मैम। हम प्रोडक्शन में जाके फोकस होंगे रेवेन्यू और सेल्स के लिए, ताकि हम बार बार फंड्स ना उठाए। 2.75 For 15%, for sir. 20%। क्योंकि सर अभी वैलिडेटेड वैल्यूएशन 25 CR है, हम 2.75 की जगह 3 CR for 20% कर सकते हैं। मुझे लगता है सृष्टि, जो आपको पैसा चाहिए ना, वो हम लेके आ रहे हैं टेबल जी, पे। जी, जी। दूसरा एक्सपर्टीज लेके आ रहे हैं, बाकी सारी चीजें लेके आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये अनफेयर आस्क है। सो माय फाइनल ऑफर फ्रॉम 4 of us is clearly 2.75 crores for 20%। Let's do it, sir. 2.75 for 20%. I would request all the lions, Yeah, all 4 perfect. lions to be Let's together, do it. and we'll do it together. Let's do it। ये हमारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं। आप लोग कुछ इन्वेस्ट करना चाहेंगे? We are willing to pitch in 10 lakhs for this noble purpose, and we would like to be a part of the mission. So now it becomes 2.85, 2.85 and proportionately The equity उतना ही जो
20 पॉइंट समथिंग जो हो जाएगा वो होगा। So we are only just betting on you because we liked you very much and I think you will be able to do it. लाइन You'll तो be नहीं able to मार रहे crack ना it. नेशनल फील्ड पर। वी लाइक यू वेरी मच। उसके पास टेजर है, याद रखना। यही डेमो हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट का। कितने सारे चेक करते worth waiting a day. आदत डालो इतने चेक्स इकट्ठे करने की। Congratulations मैम, शो की सबसे बड़ी डील आपने करी है, कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम सुपर हैप्पी एंड ऑफ कोर्स ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी। मैम सबसे पहले आपको सैल्यूट करना चाहूंगा। जब भी कोई एक रेप केस होता है, एक विमेन के साथ कुछ भी सेफ्टी का इशू होता है, पूरे देश का दिल दुखता है, बल्कि मैं तो कहूंगा देश का नहीं पूरी दुनिया का दिल दुखता है। आपका इसके पीछे मोटिवेशन क्या था, आप उसको शेयर कर पाएंगे? जी बिल्कुल। बीइंग बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, आई थिंक फॉर्चुनेट इनफ नॉट टू हैव अ पर्सनल स्टोरी, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि इंडिया में केसेस होने की वेट नहीं होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली एज पर डेटा एंड आई एम श्योर जितनी भी लड़कियों से आप बात करोगे, किसी ना किसी के पास ना कोई छोटी सी स्टोरी होती है, somebody made them feel uncomfortable, कोई ईव टीजिंग या कोई सिनेरियो। तो दैट वाज द मोटिवेशन कि अगर हम टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके ये केसेस को कम कर पाए, एटलीस्ट विमेन में कॉन्फिडेंस दे पाए दैट दे ऑलवेज डोंट नीड टू डिपेंड ऑन एक्सटर्नल पीपल फॉर देयर सेफ्टी, आई थिंक वी आर गुड टू गो एंड दैट वाज द मोटिवेशन टू स्टार्ट इट। थैंक यू मैम फॉर द इनिशिएटिव। बदलेगा इंडिया तभी पड़ेगा इंडिया। एब्सोल्युटली। I come from a very traditional patriarchal family. तो growing up सब लोग बोलते थे लड़कियाँ ये नहीं करना चाहिए, लड़कियाँ ये नहीं करना चाहिए, and I never understood why. Like even like small things like on the dinner table, the girls are serving and the Boys are sitting and boys eating. are sitting, but I'm talking about like when you're 8, 9 also. You're serving. Yeah, and I never understood this distinction. So when I used to look at like girls my age doing very different things, I started reading books, and there was one particular book where it said कि if you can change your mind, you can change your life. बिल्कुल बिल्कुल। और वो जिसे कहते हैं ना कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, वो जीवन में हर जगह अप्लाई होता है, हर जगह अप्लाई होता है कि हमको जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसमें डिलीजेंट है कि नहीं, हम उसमें पूरी तरह से अपनी जान डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, और फिर यदि डाल रहे हैं तो लोग बाग उसको अप्रिशिएट करने लग जाते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट। नमस्ते लायंस। नमस्ते। जैसे हमारे इंडियन कल्चर में कहीं ना कहीं आस्था के साथ हमारी इंडिया जुड़ी हुई है, जहाँ पे हम कहीं ना कहीं बिजी लाइफ में हमारे आस्था को और स्पिरिचुअलिटी को देखते हुए कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। इजी किया एक ऐसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मिनिमम 20 रुपीज़ से स्टार्ट, जो आप डेली बेस पे सब्सक्रिप्शन बेस पे एक क्लिक पे पूरे महीने के फ्लावर्स ऑर्डर कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बिफोर 7:30 AM आपके घर पे डिलीवरी की जाएगी। और साथ ही साथ मेजर फेस्टिवल के दौरान आप प्री ऑर्डर भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपके लगने वाले तोरन्स, गार्लैंड्स, पूजा किट्स, तो इस सारे प्रॉब्लम को हम लोग ने एक सिंगल क्लिक पे ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। जैसे हम लोग ने पूजा फ्लावर रेगुलर्स बेस पे हम फ्लावर डिलीवर करते हैं कि अगर कोई ट्रायल करना चाहे तो 1 डे के लिए भी आप ऑर्डर्स कर सकते हैं, और साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग ने सॉल्व किया है, जिसमें कि आपको यहाँ पे सेट कर सकते हैं डेली, वीकडेज, वीकेंड्स, और इस तरह से आप डेली बेस पे सेट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में। और साथ ही साथ आपको कितने दिन के लिए डिलीवरी चाहिए, 30 डेज, 7 डेज, 15 डेज, वो आपने कैलेंडर सेट किया वीकेंड, और यहाँ पे आपको 30 डेज के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे कैलेंडर भी सेट कर सकते हैं कि अब मैं कल नहीं हूँ, मैं परसों से डिलीवरी मंगाना चाहता हूँ, तो आप कैलेंडर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे मॉर्निंग का कैलेंडर हमारा सेट हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे डिलीवरी टाइमिंग हम लोग ने सिलेक्ट किया है मॉर्निंग का, जो ये टाइम में आपको डिलीवरी सक्सेसफुल होती है, मतलब सिंगल पेज पे ही आपको सारा आपको सॉल्यूशन मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको कोई इंडक्शन देना है, कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं तो वो अभी हम लोग ने बॉक्स दिया हुआ है। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे चेकआउट करने के बाद आप पेमेंट प्रोसेस पे आप यहाँ पे प्रोसेस करके ऑर्डर सक्सेसफुल कर सकते हैं।
ये सब्सक्रिप्शन मॉडल में आ गया। एक मॉडल हमारा जैसे कि ये पूजा कैटेगरी का हम लोग ने पूजा सामग्री का पूरा हम लोग ने बनाया है, जिसमें आप सिंगल क्लिक पे जाके आप ये ऑर्डर को सिंगल क्लिक पे डायरेक्ट पेमेंट पेज पे चला जाता है और नेक्स्ट डे आपको डिलीवरी मिल जाती है लोकल बेस पे। आप ऑर्डर तो आप डेली मंगा तो रहे हैं, आप 2 दिन घर से बाहर हैं, फूल वालों को आपने फ़ोन किया, भैया कल फूल नहीं देना, फ़ोन ही नहीं उठाए, फिर भी आपके दरवाजे पे फूल डाल के चल गए, वो फूल वेस्ट हो गया, आप उनको उसके पैसे भी पे करने होते हैं। बट हमारे ऐप में पॉज एंड रिज्यूम का भी फीचर्स है, जिसमें कि अगर आप वेकेशन में जा रहे हैं, सैटरडे संडे फैमिली के साथ बाहर है, आप मनी सेव भी कर सकते हैं और वो कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा और फुल वेस्टेज से बच भी जाएगा। हम चेंज भी वैराइटीज़ कर रहे हैं सेम प्राइस में। येलो फ्लावर दिया, कल ऑरेंज दिया, नेक्स्ट डे ग्रीन दिया, वही कॉस्ट में। और साथ ही साथ आपका पूजा पैकेजिंग भी जो हम दे रहे हैं, एक ह्यूमन क्लोथ्स में हम पैकेजिंग कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को मैसेज देने के लिए कि हम प्लास्टिक यूज नहीं कर रहे हैं। और ये हम लोग ने ट्रस्ट बिल्ड किया मार्केट में। मैं सौरभ झा, फाउंडर ऑफ एजे किया, अररिया बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं 2011 से मुंबई में रहता हूँ। आपकी आस क्या है? आज के 51 lakhs for 12% equity। वेल डन सौरभ। सौरभ जी, वेलकम टू लायंस डेन। मेरा क्वेश्चन है कि ये जो आप 730 का जो बोले हैं, जब आप एक्सपैंड करेंगे, स्केल करेंगे, हाउ आर यू इंश्योरिंग कि दैट टाइमिंग इज सेट? इसके लिए हम लोग ने लॉजिस्टिक एक सप्लाई चेन क्रिएट किया हुआ है इन हाउस, जिसमें कि हमारा 4:30 AM to 7:30 AM जो कि एवरीडे 365 डेज नीड प्रोडक्ट्स हैं। तो इसके लिए हम लोग ने हर 3 किलोमीटर्स के एरिया में पिकअप पॉइंट्स क्रिएट किए हुए हैं, जिसमें हमारा 70% रेजिडेंटल एरिया आता है और 30% कमर्शियल एरिया, जिसमें कि हम एक जगह से पिकअप पॉइंट से एक बिल्डिंग्स हैं, 20 कस्टमर्स हैं, तो एक साथ वो 20 कस्टमर एक डिलीवरी बॉय को कंप्लीट करते हैं। तो आपके अभी इसमें एक्टिव यूजर्स कितने हैं? मैम, जैसे बताना चाहूँगा कि हम लोग ने 2.5 years तक मल्टीपल कैटेगरीज के साथ रिसर्च कर रहे थे। बहुत सारे हम लोग ने मोर देन 12 SKUs पे हम काम किए। तो मार्च तक हम लोग ने लास्ट सब्सक्रिप्शन डिलीवर्ड किए, जिसमें 30% हमारा फ्लावर था और प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल रहा। तो हम लोग ने रीस्टार्ट करने के लिए हम लोग ने वहाँ पे न्यू सब्सक्रिप्शन लेना बंद किया और फिर फाइनली इस प्रोडक्ट पे लॉन्च किया हमने। तो आपने सारे अपने प्रोडक्ट्स काट के बोला हम सिर्फ फ्लावर्स पे फोकस? यस, क्योंकि तो ये रीलॉन्च कब हुआ? ये रीलॉन्च जस्ट अभी हम लोग ने 1 month बैक हम लोग ने लॉन्च किया और प्री रेवेन्यू पे हम लोग ने स्टार्ट नहीं किया हुआ रेवेन्यू। और इसमें अभी एक्टिव यूजर्स कितने हैं? तो हमारा जो लास्ट एक्टिव यूजर्स जो थे 11,000 यूजर्स थे, जिसमें 30% हमारा फ्लावर्स थे। तो अभी 1 महीने से ही स्टार्ट किया, तो अभी तो कंपनी में तो हम लोग ने revenue न्यू होगा टेक्नोलॉजी में इनबिल्ड कर रहे थे बहुत सारे इसके रिसर्च फाइनल रीस्टार्ट करने के लिए। अभी हमारा नेक्स्ट मंथ से हमारा रेवेन्यू स्टार्ट पे है। नहीं। कितना एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशंस हमारा है जो उसमें 30% जो हमारे एक्टिव यूजर्स थे वो हैप्पी रहे हमारे साथ, और अभी भी वो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए रेडी है, जिसमें कि 600 रुपीज़ पर मंथ और सब्सक्रिप्शन 3000 प्लस कस्टमर बेस हमारा फ्लावर्स बेस था। आपको कॉन्फिडेंस है कि आप 18 लाख का रेवेन्यू? यस मैम। और आपके जैसे कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं? कॉम्पिटिटर्स में हमारा आप देखेंगे तो हुवू स्टार्टअप जो बैंगलोर बेस्ड है, और मार्केट बेस्ड बोलेंगे तो बिग बास्केट जो ऑनलाइन फ्लावर्स डिलीवर करती है, मिल्क बास्केट, जेप्टो। बट मैंने उसके बहुत सारे रिसर्च किए, जो बहुत सारे लैक है जो एज पर फ्लावर के साथ साथ जो इंडियन ट्रेडिशनल को जो गार्डलेंस चाहिए, कस्टमाइज चाहिए, जो डेली के गेंदा का चाहिए, अड़हुल का चाहिए, तो उस तरह से हम लोग मल्टीपल SKUs बनाए हुए हैं। ये मैं क्या कह रहा हूँ कि जो पूजा सामग्री में लिखता हूँ गूगल पे, जी। तो बहुत सारे लोग गार्लैंड्स, फूल, फ्लावर्स ये सब भी देते हैं, तो आप में और उनमें क्या फर्क है? यस, तो उसमें जो है कि वो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे नहीं दे रहे हैं, आपको एवरीडे उठ के ऑर्डर्स करने पड़ेंगे, फिर उसके लिए डिलीवरी चार्ज भी पे करते हैं। जो 20 रुपीज़ की फ्लावर्स आपको नहीं मिल पाती है भगवान के लिए जो चाहिए, आज लोकल वेंडर के पास जो जाते हैं मल्टीपल गार्डन्स लगे रहते हैं, आप चूज़ करके लेते हैं। उसी तरह हमारे ऐप पे आप चूज़ करके ले सकते हैं। इससे यूनिकनेस जो मार्केट में आपको नहीं मिलता है, और लो कॉस्ट में आज 20 रुपीज़ की फ्लावर इंडिया में आप अगर मैं ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ 1 डे के लिए, उसके लिए 20 रुपीज़ के लिए मुझे 45 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज पे करने पड़ते हैं। सौरभ जी, यस, मैं आपको बोलता हूँ कि जो आपने ये चीज़ आइडेंटिफाई की है वो राइट प्रॉब्लम है, या लेकिन इसको बहुत सारे लोग सॉल्व कर रहे हैं। यस, और मैं आपको बता दूं कि यदि मैं रोज़ सुबह पूजा करता हूँ और मेरे यहाँ पे फ्लावर आते हैं, एक ट्रेडिशनल तरीके से आते हैं। मेरे को दुर्वा चाहिए होती है गणेश जी के लिए, वो भी आती है। Yes. मेरे को बेलपत्र चाहिए होता है शिव जी के लिए, वो भी आता है। Yes, sir. मेरे को गेंदे का फूल चाहिए होता है, किसी पर्टिकुलर तुलसी का पत्ता चाहिए होता है मुझे श्री कृष्ण को चढ़ाने के लिए या फिर वैष्णु जी को चढ़ाने के लिए, वो भी आता है। और सारा कुछ उसी तरह से आता है। Right. और ये पिछले
10 साल से आ रहा है Correct, मेरे sir. यहाँ पे, मुझे आज तक 10 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वो मिस हुआ हो। लेकिन जिस चीज को आप रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी से उसको सॉल्व करेंगे, अभी जो है वो लोकल वेंडर अपने लेवल पे कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि वहाँ एक गैप है। सॉरी टू कट ऑफ सर, यहाँ पे जो है जो लोकल वेंडर्स होते हैं उनके लिमिटेड सेल्स होते हैं, उनके पास क्योंकि खुद बनाते खुद ही डिलीवर करते हैं, वो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल को रिस्क नहीं लेते हैं। वो सिर्फ आज जो 10 साल से फूल बेच रहे हैं, अगर उनका मार्केट देखेंगे तो 500, 700, 800 घरों तक वो एक्सेस मार्केट को कवर नहीं कर पाए। आज इस टेक्नोलॉजी के दौरान जो आपने बताया कि फूल, हम जो गार्डन दे रहे हैं उसके छुट्टा फूल भी आएंगे, दुबरा भी आएंगे, बेलपत्र भी आएंगे, तुलसी भी आएंगे। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, Yeah. मेरी बात समझिए, आप हिंदुस्तान में जाना चाह रहे हैं पूरे, यस, वहाँ पे कैसे आप अपनी खुद की टीम से सॉल्व करेंगे या लोकल वेंडर के साथ टाई अप करके करेंगे? यहाँ पे जो होगा हमारा फ्लावर्स का जो लोकल जो वुमेन्स होते हैं जो पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं इस कैटेगरी में, क्योंकि फ्लावर्स ऐसा कैटेगरी है जो हर कोई गार्डन्स बना सकते हैं। और यहाँ पे हमारा वेयर हाउस एक छोटा सा हम क्रिएट करेंगे, कस्टमर लार्ज होने के बाद वहाँ पे गार्डन्स हमारे लोकल वुमेन से कनेक्ट होगा, जो 200-300 गार्डन्स वो बना के हमें। तो इसका मतलब ये हो गया कि लोकल वेंडर से होगा, Yes, क्योंकि yes. वुमेन से नहीं हो सकता। मेरी बात समझिए, फूल अपना एक बहुत ही पेरिशेबल Yes, sir. कमोडिटी है, जिसको जो समझता है ना कि गेंदे को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, गुलाब के फूल को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, उसका एक तरीका होता है। आप मेरी बात समझिए, क्योंकि ये थोड़ी सी टेक्निकल है। Yes. तो आप वहाँ के लोकल वेंडर से करेंगे। मैं आपको sir. बोलता हूँ सूरत में, अजमेर में, Yes. अलवर में, भरतपुर में, जयपुर में, जबलपुर में आपको लोकल वेंडर रखने पड़ेंगे। Exactly, ये sir. पक्की बात है। Yes, इसका yes. मतलब वो जो बात की वर्किंग कैपिटल वाली बात खत्म हो गई, क्योंकि वो तो आप उसी से प्रोक्योर कर रहे हैं, राइट, वही डिलीवर कर रहा है, Correct. उसी का माल है, आप तो केवल एक मार्कअप ही करने वाले हैं। जो हम लोग लोकल वेंडर को आज हमने जो मोर देन 20 लोकल वेंडर के साथ हमने काम किया, उनकी सेल्स में ग्रो आई। आज जहाँ पे 200-250 गार्डन से फ्लावर वेस्ट हो जाते हैं, इंडिया में 40% फ्लावर्स है, 2.5 लाख करोड़ का मार्केट साइज है, जो आज भी $4 बिलियन मार्केट का जो गैप है, जो इस चीज़ को फुलफिल नहीं किया गया है। आप कह रहे थे कि आप है ना हर एरिया में पहले यही पूछा था Yes, कि आप yes. लोकल वेंडर के थ्रू डिलीवर कर रहे हैं। नो लोकल वेंडर के थ्रू नहीं, इन हाउस हमारा डिलीवरी पर्सन डिलीवर कर रहे हैं। नहीं, वो डिलीवर आपके लोग कर रहे हैं, लेकिन आप Local मैं फूल बेच रही हूँ, तो आपकी ऐप से मुझे ऑर्डर आया कि इनका घर जो मेरे ठेले के पास है, मैं यहाँ पर डिलीवर कर दूँ, तो मैं ही कर रही हूँ ना डिलीवर इनको। नहीं, फिर वो हमें 2000 गार्डन एक पिकअप पॉइंट पे डिलीवर कर रहे हैं, और वहाँ से हमारे डिलीवरी पर्सन प्रॉपर ऑर्गेनाइज के थ्रू वो हर घर में डिलीवर किया जा रहा है ऑन बिफोर मुझे एक 7:30 बात है। बताइए, हिंदुस्तान में रोज सुबह एक चीज डिलीवर होती है और बेनागा होती है, हिंदुस्तान के कोने कोने में होती है और कभी डिले नहीं होती है। Yes. कौन सी चीज है वो? अखबार। न्यूज़पेपर सर। कौन सा ऑर्गेनाइज सेक्टर उसको डिलीवर करता है? सर लोकल सर। पूरी तरह से लोकल सिस्टम Yes, काम sir. करता है, पूरा अनऑर्गेनाइज सिस्टम Exactly. काम करता है। कोई न्यूज़पेपर एजेंसी भी नहीं करती है, वो भी एक थर्ड पार्टी को देते हैं, Exactly. जो कि अनऑर्गेनाइज वो सेक्टर खुद को देते कस्टमर हैं। बनाते हैं और मैं आपको ये deliver- कहना चाहता हूँ Yes. कि ये प्रॉब्लम सॉल्व लोकल तरीके से ही हो सकती है। जहां तक आपकी बात है, पूजा सामग्री रियली बहुत बड़ी कैटेगरी है और उसके अंदर बहुत बड़ा स्कोप है और उसके अंदर रियली स्टैंडर्डाइजेशन का चैलेंज है, क्योंकि वहीं एसकेओ भी बड़ा है। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मान लिया आप ये बॉक्स है, कितने का होगा ये बॉक्स आपका? ये 1199 सर। 1199 ना, तो इसका मतलब ये एक ऐसा चीज होगी कि जिसके अंदर आपके पास मार्जिन भी बचेगा। यस, तो ये जो चीज है ये 100% ऐसी है जो चाहिए लोगों को, क्योंकि अभी भी उनको नहीं तो इंडिविजुअली खरीदनी पड़ती है या उनको पुजापा जाके खरीदना पड़ता है, या तो वहाँ कैटेगरी में बहुत बड़ा स्कोप है और वहाँ पे हो रहा है। सर ये कैटेगरी में जैसे कि अभी हम लोग ने कॉर्पोरेट B2B कॉर्पोरेट्स भी हम लोग ने ट्रायल किया, जैसे कंपनीज कि हर बोनस देते हैं दिवाली में एम्प्लॉय के साथ, जैसे गृह प्रवेश जो बिल्डर्स फ्लैट सेल करते हैं, तो की के साथ वो अपना किट एक अपने कस्टमर को सॉल्व कर सकते हैं। ये अभी हम लोग मार्केट में स्ट्रैटेजी बनाया। सौरभ जी, मैंने आपका बात सुना, एज सभी लोग बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम सॉल्व यस सर। की जा सकती है, बट इसको स्केल अप करना, इसमें कस्टमर एक्वायर करना, ये एक प्रोसेस है। प्लस फूल बहुत ज़्यादा मार्जिन प्रोडक्ट नहीं, आपके जो बाकी के प्रोडक्ट है वो हाई मार्जिन है। फूल में अगर आप उस लोकल वेंडर से डिलीवरी कराते कॉस्ट नहीं, लेकिन अपना आप एक अलग पर्सन डिलीवरी के लिए रख रहे हैं, वो भी एक कॉस्ट है। तो ये इनिशियली बर्न भी इफ यू रहेगा। डोंट माइंड सर, मैं कॉस्ट को डिफाइन कर सकूं। बोलिए। फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज़ की फ्लावर्स है, जिसमें कि हमारा उसमें 55% इज ग्रॉस मार्जिन, जिसमें कि हमारा डिलीवरी चार्ज 3 रुपीज़ है, हमारा ऑपरेशन कॉस्ट 2.5 रुपीज़ आता है, और उसमें 1 रुपये टेक्नोलॉजी और 1 रुपये मार्केटिंग।
इस तरह से हमारा 12 to 15% इससे नेट प्रॉफिट आता है, आफ्टर टैक्स भी जाते हैं। हमें अभी स्टार्ट लेवल पे एबिटा लेवल पे आएंगे, फिर भी 7 to 8% हमारा एबिटा आता है, जो हम लोग ने इस पर काम किया हुआ है। फिर ऐसे ग्रो होते होते ये हमारा 15% 18% पे जंप करेगा। जी, अभी मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपने जो सेक्टर पकड़ा है वो एकदम अच्छा सेक्टर है, Yes. अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। Yes. आपने ऐप भी बहुत बढ़िया बनाया है। एक मेरा इसमें सुझाव है कि आप इस तरह से ना करके आप एक उबर जैसा मॉडल बनाए कि भाई लोकल वेंडर को और जो कस्टमर है उन दोनों को मिला दे एक प्लेटफॉर्म के अंदर और वही डिलीवर करवा दे और आपके पास रेवेन्यू आ जाए, जैसे उबर का मॉडल है या ओला का मॉडल है। सर, जब आप चेन में जाते हैं, आपके पास कस्टमर्स हैं, अभी ऑर्डर्स हमारे से आ रहे हैं, एक बार आपने ऑर्डर डिलीवर कर दिए, फिर नेक्स्ट टाइम से आपको कस्टमर डायरेक्ट कैच हो जाता है। तो ये मार्केट का बड़ा, जैसे अर्बन क्लैप में जो डायरेक्ट आपके घर में सर्विस किया, फिर नंबर एक्सचेंज हो गया, कस्टमर आ गया, वो मार्केट टूट जाता है। यहाँ पे हम लोग ने क्या रखा है, हम उनको सेल्स देंगे, उनकी ग्रो कराएंगे। आज वो जहाँ 500 हार बेचे वो 2000 हमारे हाथ से बेच सकता है, क्योंकि वो उसमें हैप्पी है। सौरभ, आपकी पिच बहुत अमेजिंग है। थैंक यू मैम। आपका बिजनेस पे अपने बहुत बढ़िया होल्ड है, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि ये, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही रिसर्च कर रहे थे आपके फूल देखकर, कि बहुत सारी एप्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में हैं, और वो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, आप बहुत सक्सेसफुल होंगे अगर आप इसी जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझको लगता है कि मेरे लिए थोड़ी सी ये रिस्की प्रोपोजिशन है। ओके। So for that reason, I am going to step out of the deal and I wish you all the best. मैं पूजा सामग्री की कैटेगरी में इन्वेस्टेड हूँ, मुझे लगता है वो बढ़ेगी, बट मेरे को लगता है कि फूल को पूरे के पूरे इंडिया में डिलीवर कराना, लॉजिस्टिक, उसकी पूरी प्लानिंग, उसमें इतना मार्जिन ही नहीं है कि वो एक बिजनेस की तरह इंडिपेंडेंटली रन कर पाए। तो उसके कारण मैं एक बार इस पर्टिकुलर डील से बाहर रहना चाहूँगा। थैंक यू। अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आउट होना चाहता हूँ, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज को अनऑर्गेनाइज करने में थोड़ा सा मेहनत भी लगेगी और राइट तरीका चाहिए होगा। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। आपका जो फाइटिंग स्पिरिट है, मतलब जब हम भी बात कर रहे हैं आपसे तो आप हमें भी लाइक you're challenging us, वो बहुत बढ़िया है। पर्सन मैम। No, Yeah. this is very nice. Keep it up, Yeah. keep it up. Yeah, this is very good. So what I was saying is, जो scalability है, that I'm a little concerned about कि वो जो scalability है वो हो पाएगी कि नहीं। And the second thing is, I'm just not able to wrap around the business aspect of this. I can definitely say, for your fighting spirit, you can call me anytime, but for now I'm out. थैंक यू मैम। सौरभ जी, मेरा भी यह है कि आप बिहार से है, यस। और बिहार से जो लोग बम्बई आते हैं वो बहुत जुझारू होते हैं, क्योंकि वो अपने जगह छोड़ के आए होते हैं। तो यू हैव दैट स्पिरिट, एंड मे बी आपने जो 3000 कस्टमर के साथ किया, वो 5-7 हज़ार 10,000 कस्टमर तक आप श्योरली पहुंच के एक प्रॉफिटेबल वेंचर कर सकते हैं, बिकॉज ये डेली डिलीवरी वाला काम है। आप अल्टरनेट लोग रखने हैं, कोई बीमार पड़ गया, 4 दिन नहीं आया, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, और वो कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करते जाएंगे तो उस कॉम्प्लिकेशन के कॉस्ट भी है। मैं पर्सनली उस कॉम्प्लिकेशन को कैसे बिल्ड कर सकते हैं उसके लिए अभी अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। तो मे बी एट अ लेटर स्टेज आप जब एक फर्स्ट लेवल क्रैक कर पाए, मे बी, एंड यू आर सो कॉन्फिडेंस कि मे बी हम सभी गलत हो, और ऐसा हुआ है कि Definitely, I will do that, sir. और वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू वेरी सक्सेसफुल। आपका पैशन गजब है, और काफ़ी बार जो दिमाग नहीं कर पाता वो पैशन कर देता है। Exactly, sir. और आपके पास दिमाग भी है, तो मेरे ख्याल से दिमाग और पैशन का कॉम्बिनेशन 11 years से एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में हो सर। तो आप कर लेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। यस, All the best. ऑल द बेस्ट। Thank you. Thank you.